हाँ जी पुत्र, ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ a sin x plus b cos x। ठीक है, simplification of the expression a sin x plus b cos x। ठीक है, इनटू लाइक ਹੁਣੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ, cos ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕੱਲਾ ਸਾਈਨ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਕੱਲਾ cos ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ cos ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ cos 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਯੋਰ +2 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਨਾ, ਸਾਈਨ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ ਪਲੱਸ cos ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ cos 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ ਆਰਟੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ a sin x plus b cos x, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਅਲੋਨ ਜਾਂ cos ਅਲੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਓਨਲੀ ਵਨ ਥਿੰਗ ਟੂ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਆਫ ਕਿ ਐਂਗਲ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਣੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ cos 2x ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸੋ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਿ ਐਂਗਲ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਲਾਣਾ। ठीक है, और दूजी गल ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਲੱਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਟਰਮ ਸਾਈਨ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਟਰਮ cos ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸਡ ਇਨਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਓਰਲੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਾਈਨ ਔਰ ਪਿਓਰਲੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ cos। ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 3 sin x, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ 4 cos x, ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਵੀ ਕੈਨ, ਜਾਂ sin x plus cos x, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਚ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ, b ਦੀ 4 ਹੈ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, sin x minus √3 cos x, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, -√3। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਕੱਲੇ cos 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੈਪ ਯਾਰ ਲਿਖ ਲਓ, स्टेप लिख लो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द एक्सप्रेशन, ठीक है, बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब a की है साइन द कोफिशिएंट, ठीक है, b की है कॉस द कोफिशिएंट, माइनस भी लोगे माइनस द स्क्वायर प्लस आ जाएगा। ठीक है, सो की करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द एक्सप्रेशन बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्रोसीड एज फॉलोस। बाकी मैं जिवें ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਆਹ ਸਟੈਪ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, cos ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, a ਤੇ b ਲੱਭ ਲਿਆ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ a ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਆਇਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ a ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਆਇਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੈਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇਨ ਸਾਈਨ ਔਰ cos। ਆ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੇਖੋ √3 sin x ਪਲੱਸ cos x। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ cos ਜਾਂ sin ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ a ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ √3, b कितना है 1, सो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ मल्टीप्लाई करना करिए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सो की आ गया 3 + 1 4 4 अंडर रूट 2। ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੈਨ ਆਈਲ ਗਿਵ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਰਟ 'ਚ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ, ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ठीक है, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਨਾਓ क्लियर है, ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਸਾਈਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ, ਆ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ cos ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਥਿੰਕ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਗਲ ਹੈ, तो ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो अगर आ वाला साइन 60 है तो ऑटोमैटिकली दूजा cos 60 होएगा। अगर एक साइन थीटा आया तो दूजा cos थीटा होएगा। तो साइन 60 √3/2 है तो cos 60 कितना होएगा 1/2। ठीक है, सो अगर तुसी इनू cos लिख दो, इफ आई राइट के आ cos कितना आ 30, अगर आ cos 30 है तो आ कितना होएगा sin 30।
ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨੰਬਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਕਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੇਮ ਐਂਗਲ ਦਾ cos ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਅਗਰ ਸਾਈਨ 60 ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਆ cos 60 ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਨ cos 30 ਕਹਿਣਾ ਦੂਜਾ ਸਾਈਨ 30 ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਣਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ sin 60 तो कितना आ गया sin 60 इंटू साइन एक्स आ कितना हो गया cos 60 इंटू cos x ठीक है या एक तरीके ना जो मैं पहला ऊपर वाला लिखा सैकेंड च मैं इतने लिख देना दिस इज मैथड 1 ऑफ एक्सप्रैसिंग 2 च फिर अगला आ जाएगा पर लुक एट दिस ए किहदा कंपाउंड एंगल फार्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b दैट इज इक्वल टू cos ऑफ a माइनस b ठीक है दैट इज इक्वल टू cos ऑफ कॉस तो पता है कि ए बी जो मर्जी ले लो भावें 60 माइनस एक्स ले लो भावें एक्स माइनस 60 क्योंकि कॉस थीटा इज कॉस माइनस थीटा तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी तुसी की कीता तुसी इहनू एक्सप्रैस कर लिया इन टर्म्स ऑफ कॉस 2 टाइम जिवें बिगिन कीता सी कॉस ऑफ एक्स माइनस 60 ਉਹੀ मैं गल कर रहा सी कि दो साइन ते कॉस ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ प्लस माइनस तुसी कॉस लिख लिया अच्छा अगर इनू मैं चाहता कि साइन च लिखना ठीक है समझ आ रही गल बेटे सो इसे करके आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्रैस इत्थे सैकेंड वे ना करते हैं वो की जिवें तुहानूं दस्सिया सी इत्थे आपां साइन 60 लिया सी इहनूं जे मैं cos ले ला तो वी कैन आल्सो राइट इट एज cos 30 अगर आ cos 30 तो sin 30 होएगा सो सेम एंगल का अगर एक cos है तो दूजा sin होएगा सो ये की बन गया इत्थों अगर मैं सैकेंड राउट फॉलो करा 2 तो दिस इज sin x इंटू cos 30 ठीक है sin x इंटू cos 30 एदी वैल्यू cos 30 प्लस cos x इंटू sin 30 cos x इंटू sin 30 ठीक है हालांकि इनू सीधा भी मैं इत्थों कट सकता 90 माइनस थीटा करके बट मैं दोनों तरीके ना समझा देना जिवें आ कितना हो गया 2 आ किहड़ा आ गया sin a cos b प्लस cos a sin b sin a cos b प्लस cos a sin b कितना होंदा है sin of a प्लस b sin of x प्लस 30 डिग्री ठीक है सो देयरफॉर ये जी एक्सप्रैशन तुहाडी दित्ती सी आ वाली इनू तुसीं प्योरली cos दी टर्म च लिखना है तो cos दी टर्म च भी लिख सकते हैं sin दी टर्म च लिखना है तो sin दी टर्म च ठीक है सो दैल बी यूज्ड अ लॉट मैं फिर कहां दैल बी यूज्ड अ लॉट इन योर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन च बड़ा वरत्या जाता है तो इस करके दोनों सारे ने इन्हू चेते रखना ठीक है भावें बोर्ड है भावें कंपीटीशन है क्लियर है अच्छा इनू आ कर और इनू एवें भी कर सकते हैं कि जे सपोज करो cos ची कन्वर्ट करना होंदा तो मैं इत्थों भी कर सकता सीधा कि 2 sin थीटा नू लिख दो cos 90 माइनस थीटा ठीक है सो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स cos ऑफ हाँ जी 60 माइनस एक्स और 60 माइनस एक्स एक्स माइनस 60 माइनस कॉमन कट के एक ही गल है बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा सो ये बराबर आ गया सो जिदा मर्जी कर लो ठीक है पुत्र सो इन जनरल जो जनरल करना हो अच्छा जनरल डेरिवेशन कर देना क्यों होंदा इदा तो मैं कहां कि a sin x प्लस b cos x तो की दस्सिया आपां कितना मल्टीप्लाई डिवाइड करना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्ना मल्टीप्लाई कर दो और ये नाल ही डिवाइड कर दो ठीक है इंटू साइन एक्स प्लस बी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ठीक है आ समझ आ रही गल इंटू cos x अच्छा हम पिछली एग्जाम्पल तो याद रखो मैं की क्या सी कि आ वाला जो नंबर है आ वाला एक आ ते आ अगर आ साइन ऑफ सम एंगल है तो cos ऑफ होएगा अगर आ cos ऑफ सम एंगल है तो सेम एंगल आ साइन होएगा लेट अस सी व्हाई दिस थिंग वाज हैपनिंग लाइक दैट वो बड़ा आसान है समझना क्यों क्योंकि तुसी एक ट्रायंगल बनाओ ठीक है और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ते ए बी नू देख के अगर मैं मान ला क्या ए है लेंथ एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो अगर मैं बेस ले ला बी तो आ कितना होएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज लाइक सो ऑब्वियस पाइथागोरस ए बी ते रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो अगर आ ए बी है तो कोई ना कोई एंगल होएगा लेट्स से अल्फा ठीक है भैया अगर नंबर है ए 3 है बी 4 है या 3 ते 4 आ 5 आ जाएगा ठीक है सो ए पता होगा पुत्र बी पता होगा तो आ निकल ही जाऊगा तो ਇਹਦਾ मतलब कोई ना कोई एंगल होएगा ही है ना ट्रायंगल का तो लुक एट दिस व्हाट इज दिस नाउ a by अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a by that is equal to sin अल्फा
तो अगर आ साइन अल्फा है तो व्हाट इज बी बाय दिस इज कॉस अल्फा। अगर तुम ਇਹਨੂੰ साइन अल्फा कंसीडर करते हो दिस इज सर्टेनली कॉस अल्फा सेम एंगल का कॉस है ठीक है वही तो मैं समझाया सी। सो ए बाय दिस साइन है तो बी बाय दिस कॉस हो जाएगा। तो इस करके अगर मैं लिखना होवे तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज समझ आई गल बेटे। सो दिस कैन ऑल्सो रिटन एज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ वाला ठीक है हाँ जी कितना आ गया सी साइन एक्स इंटू साइन अल्फा साइन एक्स साइन अल्फा प्लस कॉस एक्स एंड कॉस अल्फा। सो देयरफॉर इन जनरल की लिखा गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ जी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये तुसी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਵੇਂ माइनस लिखना है तो माइनस कॉस माइनस वाला लिख लो जो साइन च करना है तो वो प्लस आ जाएगा ठीक है। सो जो तुम इन्हों साइन च लिखो तो थोड़ा यहो जिहा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा एंड व्हाट इज अल्फा वेयर tan अल्फा इज ए बाय बी वेयर tan अल्फा इज ए बाय बी ठीक है। सो इसका मतलब अगे तो याद रखना है तो रख सकते हो कि वी कैन राइट दिस इन टर्म्स ऑफ प्योरली कॉस एंड प्योरली साइन। हाँ तो मैं गलत लिखता ठीक है क्लियर है पुत्र। सो हुण कुछ क्वेश्चंस कर लेने मैं कहा लेट्स से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ठीक है इन्हों एक्सप्रैस करो फटाफट चलो प्रैक्टिस कर ली। हाँ जी की करिए अंडर रूट टू ना मल्टीप्लाई वाई बिकॉज अंडर रूट ऑफ ए ठीक है बी जी अगर माइनस साइन लैके चलते हो वन स्क्वायर ठीक है भाई माइनस वन स्क्वायर कर दे तो आंसर सेम ही आएगा रूट टू ना मल्टीप्लाई ठीक है। सो वन बाय रूट टू आ जाएगा ठीक है आ भी कितना आ गया वन बाय रूट टू कॉस एक्स। हाँ जी हुण फटाफट देखो एंगल सेम है आ हुण किहड़ा एंगल नज़र आ रहा जिहदी वैल्यू पता है। चलो दिस इज व्हाट कॉस 45 अगर ये कॉस 45 लेंदे तो साइन 45 हो जाएगा। सो साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 ठीक है। सो दैट इज रूट टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ठीक है ए माइनस बी ठीक है। सो रादर दैन ना जो मैं दसिया क्या फार्मूला रटन की बजाय ना आई रिकमेंड क्या सिर्फ फर्स्ट स्टैप याद रखो कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाय हाँ जी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ਉਹਦੇ बाद तुसी एंगल ਤੁਹਾਨੂੰ फटाफट लभ जाएगा ठीक है सॉल्व कर लो जनरल है तो मैं दस ही दिता। अच्छा एक आ दस्यो रूट थ्री कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हाँ जी करो जरा हाँ जी ए किन्ना है ए भी कोई भी चूज कर लो कोई फर्क नहीं मतलब एक कॉस का कोफिशेंट है एक साइन का जी रूट थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर या माइनस वन स्क्वायर वट एवर कितना आ गया थ्री प्लस वन टू अगेन इन्हों भी टू ना मल्टीप्लाई कर दो ठीक है टू ना डिवाइड रूट थ्री बाय टू कॉस एक्स माइनस वन बाय टू साइन एक्स। हाँ जी हुण दो नंबर आ गए। हाँ जी हुण जे कॉस लिखना है तेन कॉस लिख लो कॉस ए कॉस भी लग जाएगा जे ओवरऑल साइन लिखना तेन साइन लिख लो ठीक है थोड़ी मर्जी है दोनों आपस में बराबर ही है ठीक है। चलो कॉस कर लें। हाँ जी किहड़ा एंगल है कॉस 30 होंगे दिस इज कॉस 30 अगर ये कॉस 30 डिग्री या साइन 30 डिग्री होंगे ठीक है अच्छा। सो कितना आ गया टू टाइम कॉस एक्स कॉस 30 माइनस साइन एक्स साइन 30 ठीक है। सो कॉज ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉज ऑफ ए प्लस बी ठीक है बेटे। और इहदा मतलब कंसैप्ट भावें छोटा जिहा है बट दिस विल बी यूज्ड अ लॉट ठीक है। और हमेशा याद रखो जब भी यहो जी एक्सप्रैशन है वी वांट टू कन्वर्ट टू सिंगल साइन और कॉस वी कैन डू दैट। एक क्वेश्चन इहदा आया सी पहला लेट्स डू दैट एक वो कहता जी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रैशन इज हाँ जी वैल्यू अगेन पहला तो साइन कॉस एक्सप्रैशन सानू पता सीकेंट कोई सीकेंट होवे तो की करा करो साइन कॉस कर लो कोसेकेंट 20 इज 1 by sin 20 minus secant 20 is 1 by cos 20 ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट वी गेट एलसीएम ले लो रूट थ्री cos 20 माइनस sin 20 ठीक है डिवाइड बाय sin 20 एंड cos 20 ठीक है। अच्छा हुण look at this expression and moreover look at the numerator
a cos थीटा माइनस b sin थीटा। तो ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ √3 ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਦਾ हाँ जी √3 ਤੇ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ √a² + b²। ठीक है 2 ना सो ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਉੱਪਰ √3/2 ठीक है cos 20 माइनस 1/2 sin 20। ठीक है डिवाइड बाय साइन थीटा cos थीटा तो पिया ही है। हाँ जी दसो जरा पुराने फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन थीटा cos थीटा पिया हो तो की करीदा 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई ते 2 ਨਾਲ डिवाइड क्यों 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। तो ऊपर आ गया 4 आ वाला नंबर नीचे कितना आ गया साइन डबल दी एंगल 2 टाइम 20 40 डिग्रीज। ठीक है अच्छा हम इत्थे आ जाओ नीचे साइन उपर भी साइन च लिख लें तो जो आ वाले हुण दसो किहड़े साइन की वैल्यू आ वाली फॉर्मूला बन जाएगा ना साइन ए cos b वाला। सो किहड़े साइन की वैल्यू है साइन 60 की वैल्यू है तो अगर साइन 60 है तो cos 60 है। सो गल खत्म। सो आप की करिए आ हो गया 4 साइन 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20। ठीक है एंड लेट अस सी व्हाट वी गेट साइन का कंपाउंड बन गया। हाँ जी की फॉर्मूला बनया फॉर्मूला बन गया थोड़े को 4 sin a cos b माइनस cos a sin b sin of a माइनस b 60 माइनस 20 sin 40 डिवाइड बाय sin 40। सो कितना आंसर आ गया बेटे 4 आ गया। ठीक है सो हाँ ऑप्शन सी थोड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है सो ये एक्सप्रैशन इनू चेचे ही अलग ही वीडियो छोटी जी क्यों बनाई है क्योंकि ये नहीं तो विच वीडियो के किते विच लिखा हो तो रुड़ जाना सी ने तो ये हुण दिस इज़ सो इंपॉर्टेंट अगे जब अगे भी ख्याल रखो जब भी ए sin x + b cos x वर्गी एक्सप्रैशन हो तो यू कैन ऑलवेज राइट इट इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस और साइन कॉस लिख सकते हैं सिंपलीफाई भी कर सकते हैं एंड मोर ओवर आ भी याद रखियो कि ये अगे फिर की होंदा है √of हाँ जी a² + b²। डू रिमेंबर दिस के वी कैन राइट a sin x + b cos x that is equal to √of a² + b² into cos of this some angle and also sin of some angle। so अगे भी सानू वरते जाओगे डायरैक्टली फॉर्मूले रटन तो बैटर है कि इन्ना की याद रखो और एक्सप्रैस करना तुहानू दस दिता। ठीक है बेटे चलो।